Hello dear learners, this is Anjali from Genius Achievers. In this video, we will discuss about the topic SR flip-flop. And SR flip-flop is really very important topic for your university exams. SR flip-flop is one bit memorable bistable device. वन बिट मेमोरेबल दैट मीन्स ये वन बिट के डेटा को आपका स्टोर करके रखता है एंड इट इज हैविंग टू इनपुट्स दैट इज सेट एंड रीसेट। दो इनपुट्स पे हमारा ये काम करके चलता है, सेट या फिर रीसेट के ऊपर। सेट इनपुट को आप डिनोट करते हो एस के साथ, सेट डिनोट करते हो आप एस के साथ, और रीसेट को आप डिनोट करके चलते हो आर के साथ। द डिवाइस और प्रोड्यूस द आउटपुट 1 एंड द रीसेट ऑफ द डिवाइस प्रोड्यूस द आउटपुट 0। तो इस टाइप से हम इन्हें एस और आर से लेबल करके चलते हैं। नाउ मूव ऑन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। लेट अस मूव ऑन द block diagram of SR flip-flop. Here is the block diagram of SR flip-flop. In this, input S, input R. Basically ये आपके ये जो S और R है, ये इनपुट नहीं है, ये है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स। ये है हमारे कंट्रोल सिग्नल जो आपके S और R में। यहाँ ये कंट्रोल सिग्नल्स देने के बाद आपने इनके साथ अटैच की है एक क्लॉक और ये दोनों कंट्रोल सिग्नल्स को मिला के हम उसे नाम दे देते हैं कि ये हमारी क्या है, इनपुट। और इसी इनपुट के बाद आपके पास निकल के आती है आउटपुट्स। आउटपुट्स में क्या होंगी, एक आउटपुट्स है क्यू जो आपकी करंट में काम करेगी, और एक इसकी क्या है, क्यू डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। बोथ आउटपुट should be complement of each other. If the value of Q is 0, then Q complement should be 1. And if in case the value of Q is 1, then value of Q complement should be 0. That's about the block diagram of SR flip-flop. Now move on the circuit. How the circuit is designed for SR flip-flop. We take two AND gate and attach both of them with a clock E. Let's suppose the value of clock is 1. That means our clock is enable. And these two AND gates are attached with the NOR latch. In NOR latch, we use two NOR gates and outputs of both NOR gates are attached with the input of each other. That's about the circuit diagram. In front of S, Q complement will be there, and in front of R, Q will be there. Got it? If you have any doubt, then you can comment me. I will explain. And then, now let's move on the truth table, or we can say the working of SR flip-flop. How the SR flip-flop is work. If we have two control signals, then possibilities of if we have two control signals, then possibilities will be 0 0, possibilities will be 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. Possibilities are 4, but in case of Q and Q dash, we don't know. तो हम सपोज करके चलेंगे, एक बार क्यू की वैल्यू को हम 0 सपोज करके चलेंगे और एक बार क्यू की वैल्यू को हम 1 सपोज करके चलेंगे। हम लेके चलेंगे क्यू की वैल्यू जब आप चेंज कर रहे हो 0 और 1 के केस में, तो आपके पास जो फाइनल आउटपुट आती है वो क्या आएगी, इसी बेस पे हमारा SR फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। तो लेट्स टेक
S 0, the value of S is 0, value of R is 0. If our clock is attached, it means our clock is enable condition, that means value of clock is 1. 0 and 1. AND gate, the property of AND gate is that AND gate gives output 1 only when both inputs are 1. In this case, one input is 0 and one input is 1. 0 and 1. That's why we got the output is 0. 0 is transferred here. In case of S, 1 0, we also get 0 here. 0. अब इस 0 को जब आपने नोर गेट में से क्रॉस किया, 0, आपके पास एक इनपुट है. लेट सपोज आपकी नेक्स्ट भी यहां पर वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम, क्योंकि 0 लेट सपोज कर लेते हैं. 0 जब आप यहां पर सपोज करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी. 00 जब आपकी नोर लैच में से गई, नोर गेट में से जब इस वैल्यू ने क्रॉस किया, तो नोर गेट इज व्हाट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ OR गेट. 0 the value in OR gate is 0, and when we take the complement of 0 then we got result is 1. This output 1 is transferred here. In case of 0 1, the output of NOR gate is 0. हमने 0 एज्यूम किया था, तो हमारे पास यहाँ 0 है क्यू में, तो क्यू बार में क्या आया 1, और जब हमने इसी क्यू बार की वैल्यू को आगे ट्रांसफर करके देखा तो 0. दैट मीन्स हमारा सर्किट बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है. तो फाइनल आपके पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0. तो यहाँ पर भी हम क्या लेके चलेंगे, 0. जब आपके पास कंट्रोल सिग्नल दोनों 0 थे, आपने एक इनपुट 0 ली, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू भी क्या आई, 0 आई. गॉट इट. अब सेम केस हम क्या लेके चलेंगे, नेक्स्ट S और R. अभी हम इसको इरेज कर देते हैं एक बार. हमारे पास इस केस में R की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू भी 0 है. हमने 0 लिया था तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पर 0 ही आ गई थी. 0. अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज की वैल्यू क्या लेके चलनी है, 1. अब 0 था, क्लॉक की वैल्यू 1, तो यहाँ पर एंड गेट है, तो एंड गेट में तो वैल्यू 0 आएगी. जब तक आपके दोनों पे 1 नहीं होगा तब तक आपकी वैल्यू आगे ट्रांसफर नहीं होगी कंप्लीट. 0. अब यहाँ से हमने एज्यूम कर ली कंडीशन कौन सी वाली है, 1 वाली. अब यही वाला 1 आपकी आउटपुट में यहाँ पर आ जाएगा. 1 और 0, when both outputs are different, in case of NOR gate, then you will get result is what, 0. Result is 0. अब यही 0 आपका इस आउटपुट से ऊपर ट्रांसफर होगा. 0 NOR गेट में 0 की वैल्यू होती है 1 हमारे पास. अब दोबारा से हम इसी 1 को यहाँ पर लेके जाते हैं. 1 और ऑलरेडी था हमारे पास 0. 1 के केस से वैल्यू क्या आई, 0. क्यू अगर आपका 1 है तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट आपका 0 चल रहा है. मतलब इस केस में हमारा सर्किट बिल्कुल सही परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. मतलब जो हम क्यू में वैल्यू लेके चल रहे थे, चाहे हमने 0 ली थी तो हमारे पास 0 ही वैल्यू आ रही थी, 1 है तो 1 वैल्यू आ रही थी. तो जब आपके पास 0 है तो आपका डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, क्यू एंड के उस टाइम पे जो वैल्यू है सेम वैल्यू आपकी रिटेन कर रही है. अब हम नेक्स्ट के लिए मूव करते हैं. S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 1. S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू क्या होगी, 1. S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1, हमारे पास क्लॉक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1. अब देखो बोथ वैल्यूज क्या हैं यहाँ पर, क्लॉक की वैल्यू और R की वैल्यू 1. तो एंड गेट में से जब हम इसे क्रॉस कराएंगे तो हमें यहाँ पर भी क्या वैल्यू मिलेगी, 1.
1 0, इन दोनों वैल्यूज को जब हम एंड गेट में से करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि एंड गेट तभी हमें आउटपुट में 1 शो करता है जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 होती है। एक भी इनपुट अगर हमारे पास 0 है तो आउटपुट में हमें एंड गेट के थ्रू मिलेगा 0। अब यहां पर आपके पास 1 है, इस केस में वैल्यू क्या है 0, तो हम लेट सपोज करके चलते हैं क्योंकि वैल्यू क्यों क्या मान लेते हैं 0। 0 जैसे ही हमने सपोज की 0 के थ्रू हम यहां पर आ गए, ये वैल्यू हो गई 00। 00 को जब आप नोर गेट में से क्रॉस कराओगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी नोर गेट में से 1, क्योंकि नोर गेट की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अपोजिट ऑफ ओर गेट। ओर गेट का कॉम्प्लीमेंट है। ओर गेट हमें 1 वैल्यू तब शो करता है अगर हमारे पास एक भी इनपुट में अगर सिंगल 1 है तो भी हमें आउटपुट में 1 मिल जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास दोनों 0 हैं, जब आप इसे ओर गेट में से करोगे तो वैल्यू मिलेगी 0 एंड नोर इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओर, वहां 0 मिलेगी तो नोर के थ्रू हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1। इसी 1 को हम आगे ले गए, 1 1 1 1 वैल्यूज को जब आप नोर गेट में से क्रॉस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, राइट। तो यहां पर 0 लेके चले थे तो वैल्यू क्या आई है 0। अब सेम केस हम 0 की जगह यहां पर क्या पुट करके देखते हैं 1, क्या ये 1 में हमारा काम कर रहा है, इरेज करके चलते हैं, हम सिर्फ इसी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं यहां पर। अब यहां पर हमारी वैल्यू सेम रही हैं, 0 और 1 के केस में हमारी दोनों वैल्यूज क्या रही हैं सेम। जब हमारे पास यहां पर वैल्यू सेम रही हैं तो वैल्यू यहां आउटपुट में 1 और यहां इस केस में हमें मिलेगी 0। अब यहां पर हमने मान लिया कि हमारे पास वैल्यू क्या है 1, यहां पर हमने क्या की वैल्यू को मान लिया 1। अब हमारा यही वाला 1 यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। 1 0 को जब आप नोर गेट में से क्रॉस करोगे आपको आउटपुट में मिलेगा क्या 0, आपको मिलेगा 0, यही 0 आपका यहां पर ट्रांसफर होगा। 1 0 1 0 के केस में आप जब नोर लैच में से क्रॉस करोगे आपको क्या मिलेगा 0, यहां पर भी 0 और ये भी 0, तो ये चीज तो क्या कर गई आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो चाहे आप वैल्यू यहां पर 0 लो या 1 लो, 1 के साथ पॉसिबल ही नहीं, क्या पॉसिबल है वैल्यू सिर्फ 0 ही पॉसिबल है, आप यहां पर 1 नहीं ला सकते। अगर 1 तब काम करता आपका जब यहां पर 1 इनपुट लेने के बाद यहां पर आपकी 0 और यही वाला 0 ट्रांसफर करने के बाद आपका वापस 1 मिल जाता, लेकिन 1 लेके चले थे और वापस में हमें क्या मिल रहा है 0, इसका मतलब हमारी आउटपुट ये काम नहीं करेगी। तो दोनों ही केस में आपकी काम क्या करेगी, क्या की वैल्यू अगर 0 होगी तभी हमारा ये सर्किट काम करेगा, अदरवाइज हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेंगे 1। जब हमने ये वैल्यू 1 ली तो यही वाला 1 हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और 1 1 से वैल्यू हमारे पास पहले ही 1 थी, 1 1 से यहाँ पर हमारी नोर गेट में से क्रॉस करते ये वैल्यू हो गई हमारी 0 और 0 को जैसे ही हमने यहाँ क्रॉस किया तो 00 से वैल्यू हो गई हमारी 1। तो जब आपके पास क्यू की वैल्यू 1 है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर रहा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट, इसी तरीके से हम क्या करेंगे दोनों वैल्यूज को 1 1 पुट करके देखेंगे। अब हमारे पास यहां पर वैल्यू 0 की जगह क्या हो गई 1, अब यहां पर भी हमारे पास इसी गेट में वैल्यू आ जाएगी 1, दोनों गेट के थ्रू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 1 वैल्यू आ जाएगी।
सॉरी फॉर टेक्निकल फॉल्ट। व्हेन वी टेक 1 1, अब ये देखो यहां से आपने R से भी 1 को क्रॉस करा दिया है, आपने R से भी 1 को क्रॉस कराया, S से भी, और क्लॉक हमारी 1 थी। तो जब आपका ये क्रॉस करेगा एंड गेट से, ये वैल्यू 1, ये वाली भी वैल्यू क्या हो गई 1। अब 1 वैल्यू अगर आपके पास एक सिंगल भी 1 है तो आप जब उसे नोर गेट में से क्रॉस कराते हो आपके पास आउटपुट हमेशा 0 मिलेगी। सेम केस यहां से भी 0 मिलेगी। जब दोनों वैल्यूज 0 हैं तो किसी भी तरीके से आपका यहाँ पर 0 और 1 कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये दोनों वैल्यूज हमारी वर्किंग में नहीं आएगी, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, चाहे आपकी इनपुट की वैल्यू 0 हो या फिर 1 हो, तो दोनों ही केस में ये वर्क नहीं करेगा। यही हमारी SR फ्लिप फ्लॉप की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि जब आपके पास S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे पास वर्क नहीं करता। ये हमारे पास क्या थी, SR फ्लिप फ्लॉप की एक कंप्लीट टेबल थी जो हमने अभी डिस्कस की है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्साइटेशन टेबल, द फंक्शन टेबल एंड स्टेट डायग्राम ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप। देखो अभी इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों वैल्यूज 0 थी तो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है आपकी, क्यू की वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू 0 मिल रही है, 1 है तो हमें 1 मिल रही है। जब S की वैल्यू 0 और 1 है तब आप चाहे 0 रखो या फिर 1 वैल्यू रखो, आपको आउटपुट में हमेशा ही 0 मिल रहा है। सेम केस अगर आप 1 0 रख रहे हो तो आपको आउटपुट में 1 ही मिल रहा है। लेकिन जब आपके पास दोनों की वैल्यू 1 है तो आपके पास अनडिफाइंड मिल रहा है कि आप उस चीज को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।